Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Challenges of Nation Building, which is the first chapter of second book. And under this chapter, we have started our discussion uh, about the problems which the country was facing at the time of independence, and we have seen that there were three important challenges, or we can say problems, that the country was facing. And the first challenge was the challenge of nation building, because um, our country faced partition with independence, and this partition uh, caused so many problems which were directly related to the nation building. And then there was also problem regarding the integration of the princely states. And we have also seen that we have also discussed about it, that there were many countries, many newly independent countries of Asia and Africa, which in order to um, make their nation united and integrated, actually they suppressed diversity, because in their opinion it was not possible to encourage and promote diversity and maintain the unity of the country. So it was there was a kind of fear that in India also we can adopt the same way of suppressing the diversity, but our leaders were not of that opinion. And in our country we achieved national unity with maintaining and promoting our diversity. And then the second challenge was to establish democracy, which was also a very great challenge, because democratic provisions were there in the constitution, but it is not easy to evolve democratic practices among the people of the country. So it was a very big challenge for our country to establish democracy in reality. And in this regard also we have seen that there were many countries who have adopted democratic constitution, but actually they have democracy only on paper. The democracy was not real in most of the newly independent countries of Asia and Africa. They started with democracy, but very soon the democratic nature was changed, and the countries turned undemocratic. But our leaders were very much determined to bring democracy in reality in a meaningful way. And then we see the third challenge which our country was facing was the challenge of economic development, how to develop the economy of the country. But the economic development was not the sole challenge, we can say. Our leaders were of the opinion that economic development should come with social justice, nothing at the cost of the social justice. And that is why it became a very important challenge for the leaders. So these are the three important challenges which our country was facing at the time of independence. And what we see that in this book, we will discuss the first challenge in this chapter, which we have started, the challenge of nation building, and the remaining two challenges will be discussed in the next two chapters. Okay, so right now we are discussing this challenges of nation building. And in this, what we find that in front of us, this was the biggest challenge. And I also told you in the previous class that many times it is said by, especially by the Western
thinkers that India is not a nation because of diversity. So many diverse people belonging to different religion, people belonging to different culture, people speaking different language are living together. So in such a diverse group were living together, and this cannot be called as a nation, because what we find in Europe, most of the countries are there is uniformity in religion, there is uniformity in language in the European countries, and that is the binding factor for the people of that country. Same language, same religion, same culture. These are the factors which bind people together in Europe. But in our country, we are not having such binding factor. So the question is, what binds the people of India? It's not language, it's not religion, it's not culture or tradition. Then what? The factor which bind us together is our shared history, the history which we share together. The factor which bind us together is the political ideals, the ideal of democracy, equality, freedom, social justice. These are the factors which bind us together. The aspirations of the people, the ideals of the people, the history of the country. So though we are diverse country, we have diversity of different types, still we are one. And what we find when India got independence, that was a very important event, but with independence our country was partitioned, and that partition was done on the basis of religion, because it was the opinion of Muslim League that in India single people are not living, but in this country two people, Hindus and Muslims, are living together, which is not possible. According to Muslim League, two people belonging to different religion cannot live in one nation, and this is called two nation theory. This is called टू नेशन थ्योरी. टू नेशन थ्योरी का ये मतलब होता है कि जो हिंदूज एंड मुस्लिम, दे बोथ आर people who belong to different religion, and people belonging to different religion cannot live together in one nation. For people belonging to two different religion, there should be two different countries, and that is for Muslims there should be another country, and the name of the country is Pakistan, and for Hindus there will be India. So this was the argument, this was the theory presented by Muslim League. Though Congress was not in support of this demand, but some developments took place in the 1940s. Some political developments took place, and we can say that there was role of British also. They also wanted that partition of India should be done. So we can say that such circumstances arose in which Congress also has to accept this demand of Pakistan. And we see that with this act of Indian Independence Act of 1947, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया आज़ाद भी हुआ और साथ ही साथ इंडिया का पार्टीशन भी हो गया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
वी विल डिस्कस दिस पार्टीशन। पार्टीशन का जो इम्पैक्ट था, प्रोसेस था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। जो प्रोसेस हुआ, किस तरह से पार्टीशन होगा। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। पार्टीशन करना कोई आसान चीज़ नहीं था। ये डिसाइड तो हो गया कि यस, जो इंडिया है वो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, बट हाउ टू डिवाइड इट, कैसे इसको इस डिवीज़न को इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस पे जब ये क्वेश्चन उठा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस पार्टीशन, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस majorities will be followed. It means कि the reasons where a particular religion is in majority, then that suppose in a region Hindus are in majority, then that region will be in India, and the region where Muslims are in majority, then that region will be with पाकिस्तान। तो दिस वाज डिसाइडेड कि रिलीजियस मेजॉरिटी के प्रिंसिपल को ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग वी आर डिस्कसिंग प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। और ये प्रोसेस में जो पहला डिसीजन था इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वही डिसीजन था कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये इट वाज आल्सो नॉट इजी कि बस रिलीजियस मेजॉरिटी के प्रिंसिपल को भी इम्प्लीमेंट करना काफ़ी, उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स आए। और इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम आई, हम लोग देख रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। तो प्रोसेस तो यही डिसाइड किया गया कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी को हम फॉलो करेंगे, बट इसमें प्रॉब्लम आई। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो ये था कि there was no single belt of Muslim majority areas in British India. ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा सिंगल बेल्ट नहीं था जिसको कि सेपरेट किया जा सके एज मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, और जिसको कि सेपरेट करके पाकिस्तान बनाया जा सके। सिंगल बेल्ट नहीं था एक्चुअली। देयर वर 2 areas of concentration, 2 areas where Muslim population was concentrated, and this one area was in the west of the country, and the another area was in the east of the country. But what we find कि ये दोनों जो पार्ट हैं जिसको हम वेस्ट कह रहे हैं, सपोज दिस इज इंडिया, उस समय का इंडिया जो था वो इधर पाकिस्तान पूरा मिला हुआ था, और ये बांग्लादेश भी जो है वो भी मिला हुआ था। दिस वाज आल्सो इंडिया, है ना। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि ये 2 एरियाज जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज थे। लेकिन दीज 2 वर सेपरेटेड। एक कंट्री होने के लिए, इन ऑर्डर टू बी अ सिंगल कंट्री, व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। बट हियर व्हाट वी फाइंड these 2 areas which were where concentration of Muslim population was there, these 2 areas were separated, they were not joined, है ना, वो combined नहीं थे, वो separated थे। तो ये अब प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे एक कंट्री के फॉर्म में आए। लेकिन फिर बाद में इसको भी एक समझ लिया गया कि ओके, नाउ पाकिस्तान विल बी ऑफ 2 टेरिटरीज। एक हो जाएगा वेस्ट पाकिस्तान, दिस इज वेस्ट पाकिस्तान, एंड दिस इज ईस्ट पाकिस्तान। इट वाज डिसाइडेड कि पाकिस्तान 2 पार्ट में होगा, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ओके, एंड ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में क्या होगा, इंडिया की होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेस्ट पाकिस्तान, दिस वन, एंड दिस वन इज ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो और बीच में क्या है, बीच में इंडिया है। तो इस प्रॉब्लम को कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज हैं वो
सिंगल बेल्ट नहीं था, उसको इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया. लेकिन दिस वाज नॉट द ओनली प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम वाज दैट इट्स नॉट that all the Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. There were many Muslim majority areas who did not want to be with Pakistan. Instead, they wanted to be with India. So this was also one of the problem which was faced in the process of partition. Like we see in the northwestern frontier province, which is called NWFP. Northwestern Frontier Province, we see that in this province, the most important leader of this province was Khan Abdul Ghaffar Khan. And we see that Khan Abdul Ghaffar Khan, he was very much popular among the people. He had the support of the people, and Khan Abdul Ghaffar Khan, he had staunchly opposed this two-nation theory. He was not in the favor of the creation of Pakistan for Muslims. And it was not only his opinion, but the people of this region were also with the leader, Khan Abdul Ghaffar Khan. So this kind of situation was prevailing. It was decided that whichever regions are Muslim majority, they will be in Pakistan, but the people were not in favor of being in Pakistan. People were not in favor of creation of Pakistan, which was represented by Khan Abdul Ghaffar Khan. And here one more information is very much important for you, that of Khan Abdul Ghaffar Khan, he was also known as Frontier Gandhi, because this is important from your examination point of view. Okay. ये खान अब्दुल गफ्फार खान, he was the leader of NWFP, Northwestern Frontier Province, and he is also called Frontier Gandhi. So this was the second problem which we are discussing in the process of partition, that the area was Muslim dominated, but people were not willing to be in Pakistan. Okay, now we come to the third problem. The third problem was about two provinces, that is Punjab and Bengal, because what we find that in these two provinces there were large areas where the non-Muslims were in majority. Okay, अगर हम पंजाब और बंगाल को देखते हैं, पंजाब and Bengal, in these two provinces the situation was different, because we see that in both of these provinces Muslims were in majority, but there was a very large area where non-Muslims were in majority. So how to chalk out the problem, कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी भी काफ़ी है, पूरी एरिया को अगर देखा जाए बंगाल और पंजाब को, तो वो मुस्लिम मेजॉरिटी में ही आ रही है, लेकिन उसके अंदर जो है वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कि नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में है. तो ये एक प्रॉब्लम, बहुत ग्रेव प्रॉब्लम आई, एंड इट वाज डिसाइडेड, लास्टली फाइनली यही डिसाइड किया गया कि इनको भी बाइफरकेट कर दिया जाए. जैसे इंडिया के दो पार्ट हो गए, वैसे ही पंजाब और बंगाल के भी दो पार्ट कर दिए जाए. एक पार्ट जो होगा वो पाकिस्तान के पास चला जाएगा, जिसमें कि ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, और जिसमें ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स है वो इंडिया में रह जाएगा. और बाकी के जो अगर सपोज जो पोर्शन चला गया पाकिस्तान में, बट वहाँ पर कुछ हिंदूज हैं, तो दे विल कम टू इंडिया, एंड
इट इज़ अप टू देम, वो चाहें तो आए, ना चाहें तो ना, इट वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर देम। और जो एरिया इंडिया में आ जाता है, अगर उसमें कुछ मुस्लिम हैं तो दे कैन गो टू पाकिस्तान, है ना। दैट वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर, अगर वो चाहते हैं तो वो जा सकते। तो यही डिसाइड हुआ कि बंगाल और पंजाब जो है उसका बाइफरकेट किया जाएगा उसको। और अगर हम देखें तो ये दो जो प्रोविंसेस हैं, इनकी जो कंडीशन हुई पार्टीशन के समय, वैसी कंडीशन किसी भी और प्रोविंस में नहीं हुई। जिस लेवल का वायलेंस इन दो प्रोविंसेस में हुआ, जो कुछ भी झेलना पड़ा इन दो प्रोविंसेस के लोगों को, वो कहीं और नहीं झेलना पड़ा। वी कैन से दैट जो डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन was actually faced by the people of Punjab and Bengal only. जितने भी वायलेंस के इंसिडेंट्स हम जानते हैं, हमने सुना, हमने पढ़ा, हमने देखा इन द मूवीज, इन द सीरियल्स, टीवी सीरियल्स, जो भी हम कहानियाँ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो कि सच होती हैं, काफ़ी सच्चाई के अंश के साथ होती हैं, वो सब इसी पंजाब और बंगाल की है। तो ये सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमा पार्टीशन का झेलना पड़ा, वो इन्हीं दोनों जगहों को झेलना पड़ा। और क्योंकि बाइफरकेट तो हो गया, बट बाइफरकेशन जो था, ऐसा नहीं था कि बाइफरकेशन के बाद जो 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 रीज़न पाकिस्तान में पड़ रहा, वहाँ सिर्फ मुसलमान ही थे, वहाँ हिंदू भी थे, तो उनको वहाँ से यहाँ आ रहे थे, और यहाँ इधर जो पंजाब का एरिया जो है उसमें जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जा रहे थे। यही कंडीशन बंगाल में थी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसमें हम ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे ना इस पंजाब और बंगाल में, मतलब जो बॉर्डर पे बिल्कुल थे, जहाँ पर बाइफरकेशन हो रहा है, उस जगह पे जो लोग थे, उन्हें आज़ादी तो मिल गई। जिस आज़ादी की लड़ाई वो 200 सालों से जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, 200 साल तो कहना नहीं सही होगा, बट जिस गुलामी में हम थे 200 साल से, और पिछले करीब करीब 100 सालों से जो लड़ाई चल रही थी, करीब करीब 90 ईयर्स तो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं ये लड़ाई चल रही थी, उसके पहले से स्टार्ट हो गई थी। तो इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज़ादी तो मिल गई, पंजाब और बंगाल के लोगों को भी मिली, सबके साथ साथ आज़ादी। बट इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये इंडिपेंडेंट तो हुए, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि वो किस कंट्री में हैं, वो इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं। ये बहुत ही जिसको एक जिस फीलिंग को हर कोई नहीं समझ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ उन लोगों ने झेला, वो उसको शब्दों में लिखना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए दैट इज़ द रीज़न यू कैन फाइंड so many creative expressions are there, like फैज़ अहमद फैज़ की कुछ पोएम्स हैं, अमृता प्रीतम के कुछ पोएम्स हैं, मतलब दे आर फुल ऑफ फीलिंग्स। किस तरह का जो सिचुएशन था उसको उसमें इस तरह से डिपिक्ट किया गया है। तो यही है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो जो हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकलती है। और आज तक हम देखते हैं कि ये जो ट्रॉमा था, इस ट्रॉमा पे आज तक हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें मूवीज़ बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं, कितने सारे फेमस मूवीज़ बने, अभी भी बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। क्योंकि जो कुछ हुआ वैसा हमारी कंट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ था, और आगे भी होपफुली ना हो ऐसा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं। ये थर्ड प्रॉब्लम आई, और इसके बाद हम आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम पे, जो कि प्रॉब्लम थी पार्टीशन के साथ ही जुड़ी हुई थी। वो ये थी कि बॉर्डर के दोनों ही साइड पे माइनॉरिटीज़ थे, है ना। जो पाकिस्तान बना उसमें जो हिंदू थे वो माइनॉरिटीज़ हो गए, जो सिख थे वो माइनॉरिटीज़ हो गए। जो इंडिया बना उस इंडिया में जो मुस्लिम थे वो माइनॉरिटीज़ हो गए। तो ये जो कंडीशन थी वो बहुत ही हम जिसको कहेंगे कि अनएक्सेप्टेबल कंडीशन थी। और एक तरह से जो माइनॉरिटीज़ रह गए वो ट्रैप्ड हो गए, फंस गए, जहाँ से उनके लिए निकलना
बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स हम जानते हैं, ऐसा कई जगहों पर हुआ कि जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को पकड़ करके ज़बरदस्ती उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह की इंसिडेंट्स जो थे वो दोनों तरफ हो रहे थे। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में सिर्फ हो रहा था या सिर्फ इंडिया में हो रहा था, दोनों ही तरफ हो रहे थे। और जो कल तक जो जिनके लिए ये कंट्री अपनी देश अपना अपनी अपनी मातृभूमि थी, मदरलैंड थी, वो कंट्री आज उनके लिए एलियन बन गई। कल तक जिनके साथ उनका उठना बैठना था, सब कुछ, एवरीथिंग दे वर शेयरिंग विथ ईच अदर, एंड टुडे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो सिचुएशंस हुए वो बहुत ही पेनफुल था। और सबसे जो इसका प्रॉब्लम आई वो माइनॉरिटीज़ को ही प्रॉब्लम आई, जो इंडिया में जो मुस्लिम बचे और पाकिस्तान में जो हिंदू बचे, उनके लिए ये सिचुएशन जो थी वो बहुत ही मुश्किलों भरा था। वो टारगेट बने अटैक्स के, और जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ कंट्री में विदिन बहुत ही अचानक में, जिसको हम कह सकते हैं इमिडिएटली ये सब कुछ होते। दंगे तो ऐसे ही होते हैं कि उनके भड़कने के पहले कुछ पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, और वो अचानक से हो जाता है। तो उसी तरह की चीज़ें हुई, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, वो इतना लार्ज स्केल पे चलेगा और इतने दिनों तक चलेगा, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसको हम कह सकते हैं। और सबको यही लग रहा था कि रुक जाएगा, मतलब वायलेंस कितने दिन होगा, थोड़े दिनों में रुक जाएगा। लेकिन मतलब पॉलिटिकल लीडर्स दे हैव आल्सो नॉट एंटिसिपेटेड कि ये वायलेंस इतना लंबा चलेगा। बट ये पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल था, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। किसी भी तरह का कोई भी जिसको हम कहें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं थी, और एवरीथिंग वाज कंप्लीटली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी का भी कोई कंट्रोल उस पर नहीं था। और जो माइनॉरिटीज़ थे उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता था, उन्हें अपना घर छोड़ के वो यहाँ पे रह नहीं सकते थे। जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, वो अगर इंडिया में कंटिन्यू करना चाहें तो उनको रहने नहीं दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। अगर हिंदू वहाँ रहना चाहें तो उनके साथ भी वही होगी। तो उनको कंपेल किया जाता था कि वो छोड़ के भागे। तो ये सिचुएशन जो थी वो प्रिवेल कर रही थी। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। बिकॉज ये जो हमारा पार्टीशन हुआ ना, ये हाईली क्या पूरी तरह से अनप्लान्ड था। इसमें किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं की गई कि अगर पार्टीशन होता है, पार्टीशन के साथ साथ दो कंट्री बन रहे हैं, बाउंड्री का डिमार्केशन हो रहा है, पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये सब कुछ कैसे होगा, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, नथिंग वॉज डिसाइडेड। क्योंकि वो उस पोजीशन में हमारी गवर्नमेंट थी ही नहीं कि वो कुछ डिसाइड कर सके, बिकॉज एवरीथिंग वॉज न्यू। अभी तो ब्रिटिश हम पर रूल ही कर रहे थे, अभी तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, सब कुछ नया नया था। ऐसे में गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो हर चीज़ पे को प्लान करके करेगी, दैट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इस सिचुएशन का जो सबसे ज़्यादा, जिसको हम कहेंगे जो खामियाजा हुआ, वो कॉमन पीपल ने ही उस खामियाजे को, उस बैड कंसिक्वेंसेस को कॉमन पीपल ने ही झेला। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। हमने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन देख लिया, अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो कॉन्सिक्वेंसेज तो हम यही देखेंगे कि इतने बड़े स्केल पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, इतना अनप्लान्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, और इतना ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुआ था, जो इंडिया के पार्टीशन के साथ हुआ। जितने किलिंग्स हुए, एट्रोसिटीज़ हुई, उतना उस लेवल का किलिंग्स और एट्रोसिटीज़ और कहीं भी ह्यूमन हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है।
और रिलीजन के नाम पे जो भी हिंसा हुई, जो भी वायलेंस हुआ, जो भी मारकाट हुई, वो सब धर्म के नाम पर हुई। और इसके जड़ में तो वही चीज़ें थी, धर्म की ही चीज़ें थी, जो कि जिसको कि कहा जाएगा कि किसी भी तरह से हम रिलीजियसली या मॉरली हम कभी भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, बट ये सब कुछ हुआ। हम चाहे सपोर्ट करें या ना करें, बट ये हुआ। और हमारे और आपके जैसे जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने ही ये सब कुछ किया। तो ये सिचुएशन थी, और इसी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज में। हमने प्रोसेस आज डिस्कस कर लिया है, अब नेक्स्ट में हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस करेंगे।